This is a question on allegation of sexual bad intentions. Sir, we are 4 brothers and sisters, 3 sisters, 1 brother, youngest. I am 23-year-old, Didi 25, sister 16 in class 10, brother 14-year-old in class 9. Belongs to Bihari family, lives in Durgapur of West Bengal. My family has grandfather, father, mother and us, hence family of 7 members, 2 BHK home. ठीक है. Grandfather is sole member. He runs our family. Father is not so strong and decision making person. And grandfather is now 80-year-old. Sir, one day ago a big incident happened. A small girl, 9-year-old, lived besides my home. Takes tuition to my elder sister. After tuition, she always used to play with us. Even she has no tuition, she come and play. From very childhood, she used to come here and play. But suddenly one day ago, she told her mother that my brother has had bad touched her. Now, sir, it is at great shock to me. I am not in condition to understand what to do in situation. Sir, actually, I don't have complete faith on that little child, because a day before these incidents, same thing happened with her mother by her grandfather, and she told this to my elder sister. My brother and small sister told that the day in which these incidents happened, that day she was talking about porn videos she watched in his dad's phone. So I was thinking that if she mixed these all in mind, and maybe she lies because sir, she used to lie always. Or even it may be true what she is telling, because sir, I am also a girl and I can understand the pain of these. Sir, I even cannot say that my brother can't do anything, because anything can happen in this dangerous world. But sir, we are very frank to each other. We used to talk every sort of thing. Even I have taught him all about hormones and reproduction. Now, sir, that child's mom is saying that if her father will come to know about all this, he will kill my brother, since he's criminal. He has done all these even before. Sir, in my home it is known to only within four sibling only, because I can't even told to father because he will got tensed and he is already having disease. के grandfather is already 80-year-old and he can't take all these at this age. My mother is too smart, is not smart. She will not understand all this and will make situation more complicated. Sir, now my only hope is you. What should I do in these conditions so that it can't affect both life ahead? Sir, please suggest me something. We are not able to handle all this. Please help us, sir. अब इस ईमेल में आप देखिए एक डायलेमा देखिए. एक 9 साल की छोटी बच्ची है, वो एलिगेशन लगाती है आपके भाई पर जो 14 साल का है, 14 इयर्स का है. उस पर एलिगेशन लगाती है कि उसने उसको बैड टच किया. अब देखिए, मैं आपसे कहता हूं, जैसे आपके मेल में आपको इस मेल के बारे में आपसे सच बातें कहूंगा आपसे. मैं हार्ट कनेक्ट है तो यहां पे हम दिल से ही बात करते हैं. तो मैं आपको कहूंगा कि आप यहां पर बहुत अधिक जजमेंटल बन रही हैं और आप यहां पर अपने भाई की तरफ से आपने लेटर में आपने पूरा जो आपका फ्रेमिंग है वो ऐसा है कि वो लड़की गलत है. आप मेरे को सोच के बताओ, जब आप 9 साल की आप रही थी, क्या आपको सही गलत का अंतर मालूम था? उसकी मम्मी के साथ एक इंसिडेंट घटा तो उसको यह मालूम चला कि सही क्या है, गलत क्या है. क्या उस लड़की के साथ पहले से ऐसा नहीं हो रहा था? क्या वो लड़की उस लड़की के साथ में जो हुआ उसको आपको लाइटली लेना चाहिए? क्या आप अपने आप को उस लड़की की जगह रखकर देखती हैं? आप तो आप एक अपने आप को उस लड़की की जगह रखकर देखेंगी और भाई के प्यार से थोड़ा सा आप डिटेच होकर सोचेंगी तो आपको लगेगा कि हमें इस मैटर को जो है वो सुलझाना चाहिए. उस बच्ची का अपने घर आना बंद कर देना चाहिए, ताकि जो भी ट्यूशन वगैरह है वो छोड़ देनी चाहिए उसको. अब उसका घर आना बंद कर देना चाहिए ताकि कल को ये इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो. अपने भाई को समझाना चाहिए कि प्लीज उस बच्ची से दूर रहना, दोबारा तुम उस बच्ची के पास मत दिखना, क्योंकि ये बड़ा मैटर है. तुम इसको इतने मजाक में हल्के में नहीं ले सकते हो. कारण उसके पीछे ये है कि अभी तक आपके घर के बड़ों को कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ आप भाई बहनों को मालूम है. और मैं कहता हूं आपसे कि 9 साल का छोटा बच्चा बहुत छोटा होता है. मेरा भी बच्चा 8 साल का है इस समय, और मैं आपको बताता हूं उसमें बहुत सारी समझ नहीं होती है कि वो आप बोल रहे हो कि उसने पापा के मोबाइल में पॉर्न, तो उसने बताया ना आपको, तभी तो बच्चा है वो.
तभी तो बच्चा है कि उसने अपने पापा के मोबाइल में देखा, कोई पॉर्न वीडियो प्रेजेंट था, उस पॉर्न वीडियो को देख के उसने बताया कि दीदी उसकी पापा के मोबाइल में ये कुछ कंटेंट था। तो आप उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्ची जो है उसने कुछ देखा, अनयूजुअल देखा, उसने आपको शेयर किया, वो आप पे भरोसा करती इसलिए उसने आप पर शेयर किया, आपसे शेयर किया। समझदार होती, बड़ी लड़की होती तो ऐसा नहीं करती। वो छोटी बच्ची है इसलिए उसने देखा, कुछ अनयूजुअल दिखा, मोबाइल में बताया उसने कि कुछ मैंने अनयूजुअल देखा, आपको शेयर किया, आपने उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। मैं आपको खुलकर कह रहा हूं ये बात, आप भले ही बुरा मान जाए इस बात का, पर सच तो सच, किसी को तो बोलना पड़ेगा। तो आपने उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, आपने उसकी मम्मी के साथ जो घटा, आपने उस इंफॉर्मेशन को भी ऐड ऑन किया। शायद से उस मम्मी की जो बात हुई होगी, उस बात को लेकर बच्ची को अवेयरनेस रही होगी, उसने बताया। तो आपको ये सोचना है कि वो छोटी बच्ची को मुझे प्रोटेक्ट करना है, वो 9 साल की। मैं देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूं, तुम्हारे भाई से नाराज हूं मैं, इसका पक्ष, ये बात नहीं है। बात इतनी सी है कि 9 साल की छोटी बच्ची और 14 साल के लड़के में फर्क होता है। 9 साल की छोटी बच्ची को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, अपने भाई को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए, बच्ची को देना चाहिए कि वो उसकी बात यदि 1% भी सही है तो आपका भाई गलत दिशा में चला जाएगा, और यदि आज नहीं रोका आपने तो कल इसका बड़ा परिणाम होगा और कल वो भुगतेगा उस चीज को। बीइंग ए सिस्टर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल योर ब्रदर कि व्हाट्स राइट और व्हाट्स रॉन्ग। तुमको वो भले ही झूठ बोल रही हो, लेकिन तुम आगे से उस बच्ची से बात नहीं करोगे, उसके आसपास नहीं दिखोगे, और तो और ऐसी खबर कोई दूसरा भी बोलेगा तो मैं तुमको ही आरोपी मानूंगी। The girls should save their world। लड़कियों को अपनी दुनिया बचानी होगी। लड़कियों को अपनी दुनिया में जो है इस तरह की जो है ना, आपको इन रिलेशनशिप से थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा। आपको ये सोचना होगा कि सही गलत क्या है। क्या उस 9 साल की बच्ची के साथ में जो हुआ, क्या उस बच्ची ने गुड और बैड टच के बारे में बोला तो गलत है। अब मेरा बच्चा एक बार स्कूल गया, 7 साल का था, 2 साल पहले की बात है, 2019, 7 साल का, तब अभी 7 का नहीं 6 साल का था। स्कूल से लौट के आया। अक्सर मैं जब जो है नहाने जाता हूं, अपने बच्चे को बुला लेता था, क्या आओ आलिया तुम्हें नहला देते हैं। मैं नहला रहा था उसको, बोला पापा आई विल यूज माई सोप माई ऑन, ठीक है। मैंने कहा मैं लगाता हूं, नहीं। बोला डू यू नो, कुछ जगह ऐसी जो मेरी पर्सनल है, उसको गुड एंड बैड प्लेसेस एंड यू कांट टच मी। मैं शॉक्ड रहा। मैं पूछा कि किसने बताया, क्या बताया। उसने कहा कि टीचर ने बताया है कि ऐसा है ना। बस स्कूल बस में ड्राइवर यदि बोले कि हमारे गोद में आके बैठ जाओ, नहीं बैठना, हमको उठ के सब बताया, हमको उठ के। तो फिर ना, ठीक है बेटा, फिर ना उसकी टीचर से बात किया। टीचर ने बोला कि नहीं, मम्मा पापा जो है तुमको नहलाएंगे तो तुम नहा सकते हो बेटा, है ना, ठीक है ना, तुम उसको बच्चा। और लेकिन मैंने उस बच्चे को उस समय कुछ नहीं बोला। मैंने टीचर से बात किया कि ऐसा ऐसा है, हुआ है, तो मतलब अच्छी बात आपने सिखाया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ना, बच्चे छोटे होते हैं, नहा नहीं पाते थे, तो फिर उन्होंने कहा। तो कभी कभी बेटा क्या होता है कि हम छोटे बच्चों को है ना सुनते नहीं है, उनको सुनना चाहिए उनको। और ये इसके पहले वाला हमने जो केस से बात की, वहां पे छोटी एक बच्ची के साथ में बचपन में कुछ गलत हुआ, आरोप आज भी उस लड़की पे लगा रहे हैं, उसके भाई और मदर। तुम्हें लगता नहीं है कि लड़की होने के नाते हमें सोचना चाहिए कि यदि वो झूठ भी बोल रही है, मान लो वो झूठ भी बोल रही है, तो क्या आपके भाई को सही ट्रैक पे रखना आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप उसको इस बात के लिए बोले आपको उस बच्ची को नहीं आने देना चाहिए घर पे, आपको वो ट्यूशन बंद कर देना चाहिए, आपको कोई दूसरा ट्यूशन ले लेना भाई किसी और का। उसकी मम्मी से यदि आप कन्फ्रंट करेंगे तो वो कन्फ्रंट करते करते मैटर बढ़ेगा। आपको यही बोलना चाहिए कि 1% भी इस बारे में सच्चाई है तो मैं अपने भाई को आपकी बेटी के पास नहीं आने दूंगी, और प्लीज से दूर रखिए, और हम क्षमा चाहते हैं इन चीजों के लिए। आगे से कभी ऐसा हमारी तरफ से नहीं होगा, और ऐसा यदि हुआ भी है तो मैं एक लड़की होने के नाते, बहन होने के नाते आपसे सॉरी बोलती हूँ, और अपने भाई को मैं समझाऊंगी कि दोबारा कभी ऐसी चीज सुनने में भी नहीं आना चाहिए। वो मदर, वो गुस्सा शांत हो जाएगा उसका। सच्चाई तो यह है कि आपको अपने भाई को समझाना है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वो गलत है, मैंने ये नहीं बोला, लेकिन समझाइश कभी गलत नहीं होती। समझाइश वो गलत है या नहीं जानते, लेकिन आपकी समझाइश जाया नहीं जाएगी। उम्मीद है कि आप इस मैटर को उस बच्ची के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर सॉर्ट आउट करेंगे। आप इंफॉर्मेशन को जोड़कर आप उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप छोटी बच्ची है, नहीं जानती कुछ वो। वही यदि 15 साल 20 साल की लड़की होती तो शायद से आप ऐसा सोचते तो मैं मान भी लेता इस बात को, लेकिन मुझे इतना पता है कि लड़कियां जनरली इन चीजों पर झूठ नहीं बोलती हैं, क्योंकि ये चीजें उनको बहुत अफेक्ट